السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کمال حسن مطلق ہے سراپا غوث اعظم کا، نظر بے قید کر اور دیکھ جلوہ غوث اعظم کا۔ وہی بندہ نوازی کی ادائیں اور وہی سج دھج، جو صورت مصطفیٰ کی ہے وہ نقشہ غوث اعظم کا۔ ہماری زندگی عشق و تولا غوث اعظم کا، یہ دل کی دھڑکنیں ہیں صدقہ کس کا غوث اعظم کا۔ ہنر میں صبح کامل اور میں عیبوں میں کامل ہوں، غلام کہیں کوئی ایسا نہ ہوگا غوث اعظم کا۔ معزز و مکرم و محترم سامعین کرام، آج میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں خانقاہ صابریہ قدوسیہ حیدرآباد دکن سے جس موضوع کو لے کر حاضر ہوں، آپ تمام حضرات کی خدمت میں، آپ تمام کے درمیان میں ہم کلام ہونے سے پہلے میری جانب سے خانقاہ صابریہ قدوسیہ حیدرآباد دکن کے تمام غلاموں کی جانب سے ولادت باسعادت پیروں کے پیر روشن ضمیر آقا حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بے حد مبارک ہو۔ معزز سامعین کرام، آج میرا موضوع سخن وہ ذات گرامی ہے جو ولیوں کے سردار ہے، سلطان الاولیاء ہے، سرتاج ولایت ہے، شہنشاہ بغداد ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ وہ مقدس ذات گرامی ہے کہ جن کو دنیا غوث پاک کے نام سے جانتی ہے، جن کی لوگ نیاز 11ویں شریف کرتے ہوئے معزز سامعین کرام اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ وہ ذات گرامی ہے کہ جس کا بغداد شریف کی گلیوں میں جب گزر ہوا کرتا تو ہر کوئی آپ کو دیکھنے کے بعد کوئی یہ نہ کہتا کہ یہ بغداد شریف میں سرکار غوث پاک جا رہے ہیں، کوئی یہ نہ کہتا کہ یہ مسلمان جا رہا ہے۔ جب بھی کوئی شہ جیلا کو دیکھتا، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظارہ کرتا اور یہ بے ساختہ اس کی زبان سے نکل جاتا کہ یہ مسلمان نہیں بلکہ مکمل اسلام جا رہا ہے، یہ مکمل مسلمان ہی نہیں، ایمان والا مومن ہی نہیں بلکہ مکمل ایمان جا رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، اسی لیے تو شاعر کہتا ہے رسولوں کے آقا کی تصویر ہے، بڑے پیر بے شک بڑے پیر ہے۔ معزز سامعین کرام، سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی وہ ذات گرامی ہے۔ آج آپ کی ولادت باسعادت کے موقع پر میں آپ تمام حضرات کے درمیان میں آپ کی ولادت کس طریقے سے ہوئی، کہاں پر ہوئی اور آپ کے والد ماجد کا نسب شریف کیا ہے، آپ کی والدہ ماجدہ کا نسب شریف کیا ہے، وہ مختصر سے انداز میں آپ تمام کے درمیان میں صوفی جی حیدرآباد چینل کے ذریعے آپ کی سماعتوں کے گوش گزار کرتا چلوں۔ معزز سامعین کرام، خوش نصیبی ہے ہماری کہ جو ہماری نسبت سرکار غوث پاک کے در سے جڑی ہوئی ہے، ہمارا دلی تعلق پیران پیر سرکار کی ذات گرامی سے جڑا ہوا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ ذات گرامی ہے کہ انہی کی فیض سے خواجہ غریب نواز ہند الولی عطا رسول سلطان الہند ہوئے، انہی کے فیض سے شہنشاہ دکن حضرت بابا شرف الدین سرکار کے پیر و مرشد صاحب عوارف المعارف شیخ شہاب الدین عمر سہروردی بانی سلسلہ سہروردیہ عراق کے تاجدار بنے۔ معزز سامعین کرام، بابا بہاؤالدین نقشبندی کو جن کے قدموں سے فیض ملا وہ ذات گرامی سرکار غوث الاعظم کی ہے۔ معزز سامعین کرام، اس طریقے سے غریب نواز ہو یا بابا بہاؤالدین نقشبند ہو یا معزز سامعین کرام شیخ شہاب الدین عمر سہروردی ہو، ان کے علاوہ جتنے اولیاء کرام گزشتہ زمانوں میں ہوئے آج اس زمانے میں ہیں، صبح قیامت تک پیدا ہوں گے، خدا کی قسم سب کو ولایت ملے گی صدقہ ہے غوث اعظم کا، سب کو اتارا ملے گا سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا۔ معزز سامعین کرام، کتنی بڑی ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم الحمدللہ سرکار غوث پاک کی محبت میں، پیران پیر سرکار کی الفت میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ کسی کو زمانے کی حکومت ملی ہے، کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو کسی مقام پہ شہرت ملی ہے، ہم اپنے مقدر پہ قربان جائیں۔ ہمیں غوث اعظم کی نسبت ملی ہے، ہمیں غوث پاک کا در ملا ہے، سرکار غوث پاک کا گھرانہ ملا ہے، سرکار پیران پیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے اللہ رب العزت نے ہماری وابستگی رکھی، یہ بہت بڑا کرم ہے۔ محترم سامعین کرام، کون غوث اعظم ہے، کون شہ جیلا ہے، کس ہستی کے دنیا گیت گاتی ہے؟ معزز سامعین کرام، یہ وہ بلند بارگاہ ہے کہ آپ اس سے اندازہ کریں
हर वली अपनी जिंदगी के अंदर ऊंचा बुलंद वो बाला मुकाम अगर पाना चाहता है तो उसको जुड़ना पड़ता है सरकार गौसे पाक के कदमों से। लेकिन जब हम इनकी जिंदगी पर, इनकी हयात तैयबा पर निगाह उठाकर देखें तो आपके वालिद माजिद के हवाले से मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम आया है कि सरकार सैयदना अबू सालेह मूसा जंगीदोश रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु आपके वालिद माजिद का नाम नामी इसमें गिरामी है और आपका नसब शरीफ बराह रास्त जाकर हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की जाते गिरामी से मिलता है और आपकी जो वालदा माजिदा हजरत सैयदा फातिमा उम्मुल खैर रजी अल्लाह ताला अन्हा आपका नसब शरीफ जाकर बराह रास्त शहीदान दश्त करबला के ताजदार हुजूर सैयदुश शुहदा इमाम आली मुकाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, इमाम आली मुकाम अलैहिस्सलाम और इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम हसनी और हुसैनी चमन में जो बहार आई है उसको गौसे आजम कहते हैं। वालिद इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम से आपका नसब शरीफ मिलता है। वालिदा साहिबा की जानिब से इमाम आली मुकाम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ाते गिरामी से जाकर आपका नसब शरीफ मिलता है। सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के वालिद माजिद मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आपकी जिंदगी का जो दौर गुजरा है, बड़े आप मुश्किलात का आपने सामना किया, दीन की खिदमतें की, लोगों को अल्लाह अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की बारगाह की जानिब बुलाया। गीलान में सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु वहां पर जलवागर आपकी विलादत बासआदत हुई। लेकिन मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, सरकार शह जिला के वालिद माजिद का जो दौर है नौजवानी का बड़ा निराला गुजरा है। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आप मेहनत मजदूरी किया करते, इस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारा किया करते थे। आप अपनी जिंदगी का जो शब रोज गुजारा करते, अपनी मेहनत मजदूरी की कमाई से खाया पिया करते और जो कुछ आपके पास बच जाता वो लोगों के दरमियान में तकसीम और खैरात कर दिया करते। मोहतरम सामीन कराम, एक दिन की बात है, सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद माजिद बीमार पड़ गए और बीमार भी ऐसे बीमार पड़ गए, आपकी तबीयत लागर थी, आप चल फिर ना सकते, आप एक मुकाम पर क़याम पजीर रहे। जो आपके पास राशन था मुख्तसर से अंदाज में वो चंद दिनों में खत्म हो गया। अलगरज मोहतरम सामीन कराम, जब आपके घर का जो गल्ला था, जो राशन था वो इख्तिताम हो गया, जब वो खत्म हो गया मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, तो ये सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद माजिद का तकवा देखिए, आपका ज़ाते रब्बुल आलमीन पर तवक्कल देखिए कि आपने अपना हाथ किसी के आगे न फैलाया। मोहतरम सामीन कराम, आपने अपनी हालात किसी पर जाहिर ना किए, आपके हालात से कोई वक्फियत ना रखता, आपने अपने आप के जो आलम से आप गुजर रहे थे उसे छुपाए रखा। मोहतरम सामीन कराम, आपने क्या किया कि जब मेहनत मजदूरी करने ना जा सके सरकार गौसे पाक के वालिद माजिद, बगैर किसी दुनिया से मांगे आपने रोजे रहना शुरू कर दिया और रोजों का भी आलम इस तरीके से हो गया मोहतरम सामीन कराम कि बगैर सहर और बगैर इफ्तार के रोजे रहने लग गए। आप बस पानी से इफ्तार किया करते और सहर भी पानी से फरमाया करते। कई दिन जब गुजर गए, कमजोर हो गए, मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, एक दिन आप नहर के किनारे पहुंचे कि आज मैं पानी से अपना रोजा इफ्तार करूंगा। देखते क्या है कि दरिया में एक सेब बहता हुआ आ रहा है। सरकार गौसे पाक के वालिद माजिद ने देखा कि सेब आपकी जानिब बढ़ता हुआ आ रहा है। उस सेब को आपने अपने दस्ते मुबारक में लिया और अल्लाह का नाम लेकर उस सेब को तनावुल फरमा लिया। जब ग़िज़ा मिल गई मोहतरम सामीन कराम, तो आपके कल्ब में रह रह कर ये बात पैदा हुआ करती कि मैंने ये जो सेब खाया है दरिया में बहता हुआ, मैंने देखा कि आ रहा था और मैंने उसे खा लिया। क्या मैंने इस सेब के मालिक से पूछा भी है या नहीं? क्या मैंने ऐसा तो नहीं किया कि मेरे जो पेट में ग़िज़ा है, जो लुक़मा, कहीं ऐसा ना हो कि नाजायज़ तो लुक़मा ना गया। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, तक़वा, तहारत, परहेज़गारी का आलम देखिए। अल्लाहु अकबर। आज हम अपनी जिंदगी का जायजा ले। हम कहीं पर दुकान में कुछ लाने के लिए सौदा जाते हैं,
हम बगैर मालिक की इजाज़त के, दुकान का जो दुकानदार होता है उससे पूछे बगैर क्या क्या हम खा भी लेते हैं, पी भी लेते हैं। इसी तरीके से मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, हम बाज़ारों में जाते हैं, आज हमारा जायज़ा देखें हम अपनी ज़िंदगी का लेकर, और एक तरफ सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद माजिद की जानिब निगाह उठाकर देखें कि आपका तक़वे का, आपकी परहेज़गारी का ये आलम है कि आपके क़ल्ब में ये ख़याल पैदा होना मुसलसल शुरू हो गया, क्या ये जो मैंने सेब खाया है, क्या ये मेरे ऊपर ये सेब जायज़ भी है या नहीं। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, पूरी शब बेदारी में आपने इसी फिक्र में गुजार दी, और उसके बाद जब जैसे ही सुबह हुई आप तशरीफ ले गए वहां से दरिया के किनारे किनारे, जहां से सेब को आपने देखा था कि बहता हुआ आ रहा है, देखा कि बिल्कुल करीब में थोड़ी दूर जाने के बाद में एक दरिया के किनारे से सेब का बाग लगा हुआ है, तो आपके दिल में यह ख्याल पैदा हुआ शायद हो सकता है कि जो मैंने सेब खाया है वो इसी बाग का गिरकर दरिया में बहता हुआ शायद आया है। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, सरकार गौसे पाक के वालिद माजिद उस बाग के अंदर तशरीफ ले जाते हैं, देखते हैं कि एक बुजुर्ग उस बाग की माली कर रहे हैं, रखवाली कर रहे हैं, और खेत की वो उस बाग की देखभाल में लगे हुए हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आपने आगे बढ़कर सलाम किया और कहा कि हुजूर क्या ये आपका बाग है? तो वो बुजुर्ग ने कहा हाँ ये मेरा बाग है, कहो किस वजह से आए हो, क्या कहना है, क्या कहना चाहते हो। तो उस नौजवान ने फरमाया सरकार सैयदना अबू सालेह रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कि मैंने आपके बाग का आपकी इजाज़त के बगैर दरिया में बहता हुआ एक सेब आ रहा था, उसको मैंने खा लिया है, बस उसकी माफ़ी के लिए आपके पास आया हूँ। जैसे ही वो बुजुर्ग ने देखा कि ये जो आने वाला अजीब व गरीब नौजवान है, ये सेब बहता हुआ आ रहा था दरिया में और इसने वो सेब खाया और उसकी माफ़ी के लिए यहाँ आया है, तो समझ गए कि ये कुछ ना कुछ ख़ास इंसान है, ये ख़ास नौजवान है, ये ख़ास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बंदा है। आप समझने के बाद कहा कि आपकी माफ़ी तो होगी जो आपने मेरे बाग का सेब खाया है बगैर इजाज़त के, आप मेरे बाग की 2 महीने तक देखभाल करेंगे। तो आपने वहां पर सैयदना अबू साले ने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपकी 2 महीने तक खेत की जो भी आपके बाग की देखभाल है वो मैं करूंगा। फिर उसके बाद आपने कहा कि आप तो इजाजत दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो तुमने सेब खाया है ये तकरीबन 3 माह से ज्यादा का वक्फा इसे लग जाता है पकने के लिए, तो और आपको मजीद चंद माह यहाँ पर खिदमत करनी होगी। तो उसके बाद मोहतरम सामीन कराम, आपने और चंद महीनों तक उस बाग की खिदमत अंजाम दी। फिर उसके बाद कहा कि हुजूर अब तो इजाज़त दे दे, अब तो मुझे माफ़ फरमा दे जो मैंने आपके बाग का सेब खाया है। मोहतरम सामीन कराम, आपने कहा कि ऐसा नहीं माफ़ होगे, आप अगर चाहते हैं कि जो आपने मेरी इजाज़त के बगैर बाग का सेब खाया है अगर आप माफ़ी चाहना चाहते हैं तो मेरी एक शर्त ख़ास रह गई है, वो माननी होगी। मेरी बेटी है जो अंधी भी है, लंगड़ी भी है, गूंगी भी है और बहरी भी है, सारे के सारे ऐब मेरी बेटी के अंदर मौजूद है, आपको उससे निकाह करना होगा। आप गौर करते चले, लम्हे फिक्र आपको दे रहा हूँ सूफी जी हैदराबाद चैनल देखने वालों को, आप गौर करते चले, क्या आज के ज़माने में भी ऐसा इंसान पाया जाता है? आज हमारा हाल ये है कि किस से हम कैसे बदला ले, कोई अगर हमको कोई जुमला कह दे तो हम उसका बदला किस तरीके से लिया जाए। आज हमारे दिल तो बगावतों की आग में जल रहे हैं, हसद और कीना कपट हमारे सीनों का जेवर बनता जा रहा है, इससे बचना चाहिए। जो गौसे पाक की मोहब्बत का दम भरते हैं, जो बड़े पीर की मोहब्बत में शब व रोज़ गुजारते हैं, उनको सरकार गौसे पाक के वालिद माजिद के किरदार से अपने आप के अंदर तब्दीली के लिए सबक लेना चाहिए। आप सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, इस्तिकामत के साथ डटे रहे। और आपने कहा कि ठीक है, अगर वो मैंने जो एक सेब खाया है और आप मेरी माफ़ी वो अगर नहीं करेंगे उसके लिए मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूं। आपकी शर्त अगर यही है कि आपकी शहजादी से निकाह के बाद अगर आप मुझे मुआफ फरमा देंगे, ठीक है, मैं ये सारे अयूब के साथ आपकी लड़की को कबूल करने के लिए तैयार हूं। अलगरज मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद माजिद का मोहतरम सामीन कराम, उस बुजुर्ग जो बाग के माली हैं उनकी शहजादी से निकाह हो गया। और जब आप अपने हुजरा मुबारका में तशरीफ ले गए तो देखा कि एक हसीन व जमील खूबसूरत शहजादी है। देखने के बाद आपके दिल में रह रहकर यही ख्याल आ रहा था कि वो बुजुर्ग ने जो ऐब गिनाए हैं, बताए हैं, ये तो वो लड़की नजर नहीं आ रही है, ये तो शायद ऐसे लगता है कि कोई दूसरी है। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, वो अपना सर झुकाए हुए वहीं पर बैठी रही आपके हुजरे में और आप मुसल्ले पर खड़े होकर
पूरी रात इबादत करते रहे। नमाज फजर अदा होने के बाद वही बाग का रुख किया सरकार गौसे पाक के वालिद माजिद ने। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, जब पहुंचते हैं बाग में, सरकार गौसे पाक के वालिद माजिद को देखने के बाद वो बुजुर्ग ने कहा है कि शायद, उन्हें देखने के बाद मुस्कुराते हुए कहा कि शायद रात की परेशानी तुम्हें यहाँ तक लेके आई है और तुमने ये ख्याल किया होगा कि जिसके साथ तुम्हारा निकाह हुआ है, क्या वो अयूबों में, ऐबों में जो मैंने आप तमाम के दरमियान में मैं तुम्हारे लिए जो मैंने ऐब बयान किए थे अपनी शहजादी के, क्या वो ऐबों के अंदर मेरी बेटी को तुमने ना पाया, इस वजह से आप यहाँ आए हो। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, सरकार गौसे पाक के वालिद ने कहा, हाँ हुजूर, यही बात है जो आप तक मुझे लेके आई है। तो आप फरमाते हैं कि जो मैंने अपनी शहजादी के बारे में जो बातें बताई है चार, वो सही है, लेकिन किस तरीके से सही है तुम्हें समझने के लिए मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम फरमाते हैं कि सरकार गौसे पाक के वालिद माजिद से जो मैंने कहा कि मेरी शहजादी अंधी है, आज तक किसी गैर को नहीं देखा मेरी शहजादी ने, इसीलिए वो अंधी है, और घर से बाहर आज तक एक कदम भी बाहर न डाला है, इसीलिए वो मेरी शहजादी लंगड़ी है। वो गीबत नहीं सुनती, इसलिए वो बहरी है, और जिंदगी में जब से पैदाइश हुई है मेरी शहजादी की, उसने झूठ नहीं बोला, इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम फरमाते हैं कि इसलिए मेरी बेटी गूंगी है। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आप गौर करें, एक सेब की खातिर यहां पर आपने निकाह के लिए तैयार हो गए और निकाह फरमा लिया, और वालिदा माजिदा देखिए, किसी गैर को नहीं देखा, झूठ नहीं बोला, गीबत आपने समाप्त नहीं किया पूरी जिंदगी, और कभी अपने घर के बाहर कदम ना रखा। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, हजरत सैयदना अब्दुल्ला सुमई उस बुजुर्ग का नाम बताया जाता है रिवायतों में, ये गौसे पाक के नाना जान है। आप अंदाजा करें इस शान के मालिक जो जैसे ही सरकार गौसे पाक के वालिद माजिद को देखा, उनकी निगाह जान गई, पहचान गई थी कि मेरी शहजादी का जो मामला होगा वो इन्हीं के अक़्दे निकाह के लिए तैयार किया गया है। बचपने से घर का माहौल, आप अंदाजा करें, नाना हजरत सैयदना अब्दुल्ला सुमई जैसा हो, वालिदा सैयदा फातिमा उम्मुल खैर जैसी हो, वालिद सैयदना अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त जैसे हो, इन्हीं के घर में गौसे आजम पैदा होते हैं, इन्हीं के घर में शह जिला तशरीफ लाते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, बहरकैफ सरकार गौसे पाक के वालिद माजिद और आपकी वालदा साहिबा की जिंदगी गुजर रही है। आपने उसी असना में मक्के मुअज़्ज़मा मदीने मुनव्वरा का सफर भी किया, और उसके बाद जब आप बगदाद शरीफ आने से पहले सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के विलादत बासआदत का जो मामला है, ईरान के एक सूबा गीलान शहर में आपकी विलादत बासआदत हुई। आप ईरान में गीलान शहर में आकर मुकीम हो गए, क़ियाम पजीर हो गए। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, जब शिक्म अतहर में सरकार गौसे पाक जलवागर हुए, ऐसी बेशुमार करामतें सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु से जाहिर हुई। एक दिन का वाक़या है मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आपकी वालिदा माजिदा फरमाती है कि मैं घर में नमाज जल्दी जल्दी अदा कर रही थी, मैंने अचानक देखा कि घर के गोशे गोशे में देखा कि कोई इंसान नहीं है, लेकिन मैंने ये आवाज सुनी कि अम्मी जान नमाज आहिस्ता पढ़िए, अम्मी जान नमाज ठहर ठहर कर पढ़ा कीजिए। हैरान रह गई। जब मैंने जैसे ही नमाज खत्म की और सलाम फेरा तो मैंने बहुत परेशानी के आलम में पड़ गई कि कौन है खुदारा जो आवाज दे रहा है। लेकिन जब ख्याल आ गया कि शिक्म अथर में गौसे पाक रजी अल्लाह तबारक व तआला जलवागर हो गए, फरमाती है कि ये हो ना हो आवाज उसी शहजादे ने दी है। मोहतरम सामीन कराम, बहरहाल सरकार की विलादत बासआदत का वक्त आ गया, बिल्कुल करीब 29 शाबानुल मुअज्जम को बगदाद शरीफ के ताजदार सुल्तानुल औलिया गीलान के शहर में मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम आपकी विलादत बासआदत हुई। आप तवल्लुद हुए गीलान शहर में। आपकी पैदाइश के बाद मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम शहर जिलान की आमद से सरकार गौसे पाक के वालिद माजिद का घर नूर से मुनव्वर हो गया, मुज़य्यन हो गया। और आपकी विलादत बासआदत के बाद गौसे पाक रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की वालिदा माजिदा आपको दूध पिलाना चाहती हैं, लेकिन सरकार गौसे पाक के वालिद माजिद ने देखा और आपकी वालिदा ने भी देखा कि बड़े पीर दस्तगीर ने मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम दूध नोश्त ना फरमाया। आपकी वालिद माजिद ने कहा कि उस दौर में, उस जमाने में जब तक
चांद ना देख लेते और सदाकत सही तरीके से ना होती तो रमजानुल मुबारक का आगाज ना किया करते। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, उस जमाने में भी जब शह जिला तशरीफ लाए आमिना के लाल के शहजादे के घर में, एक तो मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पूरी कायनात रोशन हुई और ये नूर अला नूर हुआ जब गीलान शहर में शह जिला तशरीफ लाए, बगदाद शरीफ के ताजदार तशरीफ लाए। तो उस जमाने में चांद को लेकर बड़ा मसला था, तो लोगों ने इजमाई तौर पर फैसला किया कि आज अबू सालेह के शहजादे ने दूध नोश्त नहीं फरमाया है तो आज ही पहला रोजा है। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, बेशुमार एहसानात है सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस उम्मत पर, हम तमाम पर, हमारी और आपकी जिंदगियों पर, सारी कायनात पर। आज जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतें नाजिल हो रही है, ये सदका है गौसे आजम का, ये करम है शह जिला का, ये आका बुलंद व बाला चौखट के दस्तगीर रजी अल्लाह ताला अन्हु का। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह तबारक व ताला अन्हु जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, फिर उसकी बहारें मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम अजीब व गरीब तरीके से इस कायनात पर आया होती रही। आपको एक अशार कहकर अपनी बात को मैं तकमील करूंगा। खालिक ने मुझको गौस का शैदा बना दिया, सोया हुआ नसीब था उसे पल में जगा दिया। दाखिल ना होगी मुश्किलें घर में यकीन है, घर पर जो मैंने गौस का झंडा लगा दिया, घर पर जो मैंने गौस का झंडा लगा दिया। थे बेशुमार बुत मेरे कल्बे सियाह में, उनकी निगाह ने इसे काबा बना दिया। पी कर ना दूध आपने की सबकी रहबरी, माए सियाम होने का सबको पता दिया, माहे सियाम होने का सबको पता दिया। हारून शाह जीला की निस्बत का फैज है, जीने का हर हुनर हमें जिसने सिखा दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ, मौला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। सरकार गौसे पाक के दामन से हमारी वाबस्तगी को मजबूत फरमा। पीराने पीर चौखट, पीराने पीर सरकार की चौखट पर मौला मरते दम तक हजारहा मर्तबा तेरे करम से आना जाना नसीब फरमा। मौला जितने सर में बाल हो उतने मर्तबा गौसे पाक के दरबार की, उनके चौखट की हाजिरी नसीब फरमा। गौसे पाक के सदके में हमारी दुनिया और आखिरत को बेहतर फरमा। पीराने पीर की मोहब्बत में दुनिया में जब तक जिंदगी में सांस लेते रहे उनकी मोहब्बत में जिंदगी अता फरमा, और जब मौत आए गौसे पाक की मोहब्बत में अता फरमा। कब्र में भी गौसे पाक का साथ नसीब फरमा, हश्र में भी गौसे पाक का साथ नसीब फरमा, और जब मैदान महशर का आलम हो इलाहुल आलमीन उस वक्त भी गौसे पाक सरकार के साए में हमारा हश्र अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग।